that reminds her of the lover is, making her hopeful of the return. So the peacock's dancing steps reminded me of your gate. The jasmine flowers unfolding bore the sweet scent of your forehead. The timid glances of a deer were like your own glances, and my heart was filled with thoughts of you. So I hurried back to you, swifter than the tempest cloud. This is what the husband tells his wife on his return. So, the lover now has, this is waiting in hope, and the lover says that I was hopeful, hopeful that everything that was reminding me of you, of the wife, I was hopeful that I would be returning to you. So, reminders in this poem, we see peacocks which are found in Kurunchi and Mulai Thinai. But look at the way in which the image is used. The dance of the peacock reminds him of his wife's way of walking. The blooming, so all these very feminine image, symbolism, images that are being used by the men to describe the wife. So he says that, the peacock is reminding him of his wife's way of walking, and then the scent is reminding me of you. Jasmine flower is also, associated with purity, so it is also reminding him of the pure chaste woman that his wife is, how virtuous, how good the wife is, how shy and timid she is, just like a deer. And hence he decided to return back to her. So his heart was full of her. Everything that reminded him of the lover made him so overwhelmed with, memories, that he did return to her. Now the last poem belongs to the Puram Thinai, and the poem is titled, like the downy feathers, and this is about, like the downy feathers of the fish eating egret, of she had white hair, the old dame, and when she heard the news that her young son fell in the battlefield after displaying great courage, facing a war elephant and killing him, the overwhelming joy she felt was far greater than the joy she had when she gave birth to him, and the tears she shed were far more in numbers than the raindrops that fell among the bamboos of the Vitharai hills. What is important to look at, the same egret image that was being used to describe the lover who the girl needs to be wary of, is the fish-eating egret, who has lost her son to battle. But she is seen to be overjoyed, and you see that this is for this poem is from the Puram tradition, following the Puram tradition, that is, it is celebration of war, hence even the death of the warrior, the son, is being celebrated. We can see an old woman with white hair like the white feather of the egret. When the old woman hears that her son has died in war, which courageously had bravely which who was bravely fighting a war elephant, he was killed, and she's happy at his death than the day she gave birth to him, because she now knows that her son was courageous, and his death is, has brought him glory. Um, so and did uh, and did what was considered to be right according to that time. So the old woman is so happy, she's crying of happiness, so much so that her tears of joys are far greater in number than the raindrop falling on the bamboos and Verithai hills tell us that the Kurunchi landscape, which has strong rainfall. So the happiness of this woman at knowing her son died while fighting so bravely is so much that she cries with joy, and her tears are far heavier than the heaviest rainfall. We are not very sure of the Puram Thirik, but we see that this is from the Puram tradition, because this is talking about bravery, it is talking about war, death, and here, as is the idea that is associated with the motive of war, it is also philosophical discourse on the impermanence of life. So this is
about the first background reading, that is V.R. Venkatachalapathi's Love Stands Alone. We have the entire work. The entire work is discussing Sangam literature and the components of Sangam literature, the traditions that influence Sangam literature, the social history that influenced Sangam literature, the cultural background, so on and so forth. Along with it, also looking at the literature in itself, and how what is Thinai, what is Akam and Puram, how the works were divided, so on and so forth. And also about reception, about reception and composing, that it was written in palm leaves, then it was later on, the work was preserved, and again written in taken from those palm leaves, written in and was preserved, and then what the culture, all of it. In case there is any question you may have in relation to this particular and this particular background, please let me know. Please post it in the questionnaire section. SOL, look, I'll be sharing these texts with you. The SOL study material is also available in the SOL website. Kumkum, the thing is, Kumkum, as the students do, this is actually a very good question, because the entire purpose, आपकी जो background का purpose है, आपने अभी तक V.R. वेंकटाचलपति जो ये काम पढ़ा है, देखिए ये आपकी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं, you for notes, I guess you can keep your pen and paper along, and as I am also pointing out certain things, you may note them down. You may go through the SOL study material, keep a highlighter along with you or a pencil, and take down notes during classes, and you may refer to any sort of extra material you feel like referring to, apart from what has already been shared. Now what is important is that ये जो आपका ये आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, देखिए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आप लव को कैसे दिखा रहे हैं. इट इज लव इज बीइंग शोन थ्रू nature, the very imagery of rainfall, water soaked lily, a prey, कि एक प्रे है, क्रैब अगर प्रे है तो जो बर्ड है वो प्रेडेटर है, वैसी लवर को प्रेडेटर माना गया है, लव और वो वुमन को प्रे माना गया है, और किस तरीके से उन नेचर इमेजरी को यूज करके आपके इमोशंस को जगाया जा रहा है, राइट. तो अगर हम साउथ इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करें, पर्टिकुलरली द क्लासिकल लिटरेचर, द संगम लिटरेचर, तो हम देखते हैं ये जो काम है एंटायरली is being influenced by उस टाइम का टाइम पीरियड कैसा था. तो अगर हम देखें उस टाइम पे जो आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएट्री है वो लव के बारे में भी बात कर रहा है, वो वॉर के भी बारे में बात कर रहा है. तो जब हम वॉर के बारे में बात करते हैं तो प्रेज ऑफ किंग, प्रेज ऑफ वॉर, आइडियाज की ब्रेवरी अच्छी चीज है, और लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ, वो एक इम्पर्मानेंट चीज है, इट इज नॉट परमानेंट. तो all these ideas form a part of the works during that time. और कैसे नेचर का यूज किया गया है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट. द फीलिंग जब बहुत रेन हो रही होती है, दैट मौसम, दैट रेन, देन कितने सुंदर लग रहे होते हैं वो फ्लावर्स, द ड्यू ड्रॉप्स दैट आर देयर. तो ये सारी इमेजरी, सिंबोलिज्म को यूज करके लव को डिस्क्राइब किया जा रहा है, फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो और इसके साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इट टू, कि क्या हमारी किस टाइप की लिटरेचर थी, राइट, कि वो वर्क कैसा था, वो कंपोज कब किया गया था, किन्होंने कंपोज किया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में अपार्ट फ्रॉम द प्ले दैट वी हैव कालिदासा का, कालिदासा शाकुंतला, वी हैव अनदर वर्क that is titled
that I taught is the epic सिलपति करम. उसके बाद आपके पास एक और प्ले है सूद्रका का और महाभारता. तो ये सारा वर्क आपको अवेलेबल है, एज वेल स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. टेक्स्ट आपके साथ both sir and I have shared the text with you. So you may also get the books from any of the stores, college bookstores. तो और आपका जो बैकग्राउंड है ये भी आपका मटेरियल ऑन स्टडी मटेरियल एस वेल वेबसाइट में अवेलेबल है. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे जितने भी होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द टेक्स्ट इटसेल्फ. आपके क्वेश्चंस जो हैं आफ्टर एवरी सेक्शन आपको स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएंगे. तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है जैसे सिंबॉलिज्म, कन्नगी, द आइडिया ऑफ गॉडेस पत्नी, शाकुंतला, द लव and duty, the how love and duty is being described in that work. तो वहाँ पे तो ये सारी चीजें बुक्स के नाम आपके हैं महाभारता, then you have Abhijanana Shakuntala, the recognition of Shakuntala, Mrichkatika, the little clay cart, you have Silapati Karam, then background readings, Iravati Karve, Draupadi, and Natya Shastra, Bharat Muni's Natya Shastra, and this V.R. Venkatachalapathi's Love Stands Alone, and the last is your Indian Poetics by Edwin Giraud. तो अभी if there are questions regarding the background reading we just did, तो background reading का purpose क्या है आपको हम the chapter has ended, this particular chapter has ended. इसका टाइटल था Love Stands Alone. Love Stands Alone आपके संगम लिटरेचर के बारे में बात कर रहा है. It is an extension of the संगम वर्क जो आपने एक स्टडी किया था, संगम लिटरेचर का वर्क स्टडी किया था, वो वर्क है सिलपति करम. तो ये उसका एक्सटेंशन है. वहां पर भी आप बात करते हैं ना कि संगम लिटरेचर क्या है, अकम क्या है, पुरम क्या है, क्योंकि आपकी बुक 1 जो है उसमें जहाँ पे हम कन्नगी कोवलन की शादी हो रही है वहां पे लव देख रहे हैं, फिर कन्नगी कोवलन इंटरेस्ट लेने लगता है माधवी में, वहां पे लव देख रहे हैं. उसके बाद फिर आप देख रहे हैं लव इज इन बुक 2 जब कन्नगी कोवलन अपनी लाइफ रीस्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं. और इसके साथ आप देखेंगे कि कैसे शी बिकम्स गॉडेस. तो वहां पे अकम और पुरम थिनाइज, लव एंड वॉर वाली जो थिनाइज हैं आपकी, इनका एक तरीके से मीटिंग पॉइंट है. एंड बुक 3 इज एंटायरली बेस्ड ऑन द पुरम ट्रेडिशन. इट इज टॉकिंग अबाउट वॉर. तो जो आपके चेरा किंग है वो कैसे एक आइडियल किंग है. तो आइडियल किंग का आइडिया तो आप काफी फैमिलियर होंगे इससे, क्योंकि आइडियल किंग का आइडिया आपने शाकुंतला में दुष्यंता के थ्रू भी डिस्कस किया है, आपने पांडवास के थ्रू भी डिस्कस किया है. द वेरी कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ व्हाट इज an ideal king, what is the duty of a king, right? तो ये सारे काम. एंड दिस इज व्हाट दिस इज पर्टिकुलरली जो आपने अभी ये वर्क देखा इज टॉकिंग अबाउट, इज डिस्कसिंग द संगम लिटरेचर, द संगम पीरियड. Now the next work that we'll be discussing for today, the next work from your background reading is Edwin Giraud. इनका नाम है एडविन जीरो. इन्होंने बात करी है इंडियन पोएटिक्स के बारे में, इंडियन लिटरेचर के बारे में. ओके, एंड तो एडविन जीरो इज he says that theory follows practice, and it is to be expected that Indian thinkers with a penchant for analysis and categorization would be entranced with the problems of poetry, and especially the experience of poetry. How can the experience be defined? How, on what it is based? How it is transmitted? What is the nature? They found the material for the analysis in drama and poetry. तो एडविन जीरो कह रहे हैं कि ये जो काम है आपका, जो ये बैकग्राउंड वर्क है, ये किसके बारे में बात करेगा? ये पोएट्री और ड्रामा के बारे में बात करेगा, उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेगा. इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट साहित्य, it is going to talk about literature, it is going to talk about word, it is going to talk about sense, अर्थ, शब्दों का क्या अर्थ है, काम का क्या अर्थ है, वो इन सब चीजों के बारे में बात करेगा, लैंग्वेज के बारे में बात करेगा. ओके, सो एडविन जीरो ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं अपने इस काम में.
ये कहते हैं देयर आर आउटलाइंस ऑफ थियोलॉजी in this way of looking at things, and as will be seen, poetics and theology do not meet and blend at certain points in time. Okay, yeah, so you guys had asked me to zoom in. I'll zoom it for you. आई होप इट इज क्लियर नाउ। या तो ये काम जो है आपका, ये आपको बता रहा है, तो ये एडविन जीरो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका साहित्य है, व्हेन ही टॉक्स अबाउट सांस्कृतिक साहित्य, तो एक तरीके से आपने जो पहला काम पढ़ा था वी के वेंकट चलपति, जो अभी हम बैकग्राउंड इससे पहले पढ़ रहे थे, लव स्टैंड्स अलोन, तो हम संगम लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे। संगम लिटरेचर कैसा काम होता था, क्या क्या चीजें थी संगम लिटरेचर के बारे में, उसकी सोशल हिस्ट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, कब कंपोज किया गया था, किसने कंपोज किया था, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, राइट, जैसे वॉर है, लव है, ये सारी चीजें। अब ये सांस्कृतिक ड्रामा पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं एडविन जीरो इस काम में। तो वो कहते हैं देयर आर आउटलाइंस ऑफ थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होती है? रिलीजन, स्टडी ऑफ रिलीजन, in this way of looking at things, and as will be seen, poetics and theology do not do meet and blend at certain point of time in the Upanishads क्या है आपके, वेदास के वेदांतास हैं, मतलब later Vedas हैं, the syllable om or om, the word of words that contain all words, is discussed with a logic that has the same design. So om contains the first letter of the Sanskrit alphabet a, the same the middle letter u, and the last letter ma. But the word om, when sounded rightly, resonates like a struck bronze bell. तो जैसे घंटी बजती है ना ओम, तो वो आवाज आती है. But the word om, so it resonates just like a struck bronze bell. Thus, it is too with the man who has passed through all the stages of life. तो हमें पता है कि 4 आश्रम होते हैं हमारी लाइफ के. पहला होता है बाल आश्रम ना, जब हम बच्चे हैं, फिर आपने विद्या ग्रहण करी, you learned, gaining knowledge, then you got married, finally after renouncing your entire worldly materialistic life. तो ये सारे आश्रमास के बारे में, इसलिए वो कह रहे हैं कि जो आपकी सांस्कृतिक ड्रामा या पोइट्री है, रिलीजन का ब्लेंड आप देखेंगे, रिलीजियस थॉट का, फिलोसफिकल रिलीजियस थॉट का, फिलोसफिकल थॉट का, रिलीजियस थॉट का, इन सब का ब्लेंड आप देखेंगे जब हम प्लेजर की भी बात करते हैं. क्योंकि नाट्यशास्त्र में आपको एक चीज पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि नाट्यशास्त्र बहुत अच्छे से हमें ये समझा देता है कि जो ड्रामा का पर्पस था वो क्या था. ना सिर्फ ऑडियंस को प्लीज करना, बट ऑल्सो टू, मतलब प्लीज करने से मेरा मतलब है एंटरटेन करना, बट ऑल्सो टू एनलाइटन देम, टू गिव देम नॉलेज. तो नॉलेज किसके बारे में कि कैसे, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, मॉरल, morality, virtue, all of this. So thus, out of precedence in time, the unprecedented is created. The same logic is applied to emotional states. In each man's history, there are feelings, भावा. तो भावा मिलके क्या बनाते हैं आपका मूड, वो क्या होता है, रस. All sorts of poeticians single out 8 of these: love, mirth, grief, energy, terror, डिस्गस्ट, एंगर एंड वंडर. तो लव जैसे श्रृंगार रासा के थ्रू, हमें दुष्यंता और शाकुंतला जब मिलते हैं तो संभोगा रासा, श्रृंगार रासा, लवर्स, लव. उसके बाद जब वो सेपरेट होते हैं तो कौन सा, विप्रलंबा. आप देखेंगे ग्रीफ, जब शाकुंतला दुष्यंता का ग्रीफ, मर्थ, टेरर, डिस्गस्ट, एंगर, सारे आपको ये रस के रूप में दिखाए जाते हैं, मूड के रूप में दिखाए जाते हैं, जो आप फील करते हैं, राइट. जब आप वो एक्शंस देख रहे हैं, उस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं जिसमें सॉन्ग है, डांस है, सारी मुद्राएं हैं, आपके एक्शंस हैं, हाथ के, आंखों के, इन सब के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, दीज वर्बल नॉन वर्बल क्यूज क्या कर रहे हैं, आपका एक मूड को जनरेट कर रहे हैं, राइट. व्हेन द लवर्स, आप अगर हम ड्रामा से हम लोग थोड़ा और, चलिए मूवीज की बात करते हैं, आप मूवीज देखेंगे तो आपका अगर कॉमिक सीन चल रहा होता है आपको भी हंसी आती है, राइट. सो सेम, दे आर इम्पर्सनल,
capable of communication to other men in similar states and are generalized. They are no longer private and incommunicable. They carry with them all the physical phases of their expression, their allied feelings, their dominance, and their consequence in emotional behavior. Each mood has a characteristic set of these, and it is on this fact that the whole analysis of dramatic performance is based. तो जो आपका analysis of dramatic performance है वो किस पे based है? आपका जो mood है, जो चीज incommunicable है पर उसको आप feel कर सकते हैं, right? कई चीजें इनकम्युनिकेबल हैं, आप उसे वर्ड में नहीं रख सकते. जैसे आप ग्रीफ को एग्जैक्टली ग्रीफ कैसा फील हो रहा है उसको आप नहीं रख सकते, बट आप उसको दिखा सकते हैं, राइट? तो उसके उस दिखाने को, उसके इस ड्रामेटिक, उसके इस विजुअल फॉर्म का एनालिसिस, उसके इस परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट का एनालिसिस. सो द एक्टर एज इन अ स्टैनिस्लावस्की स्कूल. तो स्टैनिस्लावस्की आपके एक रशियन थिएटर स्कॉलर थे. इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जहां पे वो कहते थे जो एक्टर है दे हैव टू एक्चुअली सिस्टमैटिकली फील दैट मूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट. बट हमें पता है कि स्टैनिस्लावस्की बहुत बाद में आते हैं. इससे पहले आप स्टैनिस्लावस्की, जब आप लेटर ऑन आप मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा वगैरह पढ़ेंगे तो आप ब्रेख्ट पढ़ेंगे, उस टाइम पे आप स्टैनिस्लावस्की को पढ़ेंगे इन डिटेल्स. नाउ तो इमोशन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसे होता है, इसके बारे में क्या है आपका योर एंटायर वर्क, दिस वर्क दैट वी आर लुकिंग एट. Now the second part that is highlighted by Edwin Giraud is that recent studies of Indian literature have at last begun to emphasize the relevance of Indian poetics to the judgment of Indian literature. तो वो कहते हैं कि Indian poetics को हम कैसे समझें, मैं इसके बारे में बात करूंगा. तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि origin of poetics कैसे हुआ है. So he says the old extant work of Indian poetics dates from the 6th or 7th century. Though it is clear that the origin of the subject are much earlier, there are references to categories that later became the very heart of poetical doctrine. तो simile, hyperbole, ये सब चीजों का reference है, इन सब का analysis है. तो कहते हैं जो आपकी poetics है, the study of the analysis of drama, poetry, literary production, वो कहते हैं it can be dated back to 6th or 7th century AD. and ये so जैसे for example he gives the example of निरुकता of यक्सा. उसके बाद वो पाणिनि के काम के बारे में बताते हैं कि पाणिनि ने भी analysis किया था of these works. So it is difficult to overemphasize that Indian poetics in its origin was descriptive or applied philosophical study, a sastra sharing much with related disciplines of grammar, logic and ritual interpretation. तो आपकी जो ये analysis था एक तरीके से एक philosophical study पे थी, अपने आप में एक शास्त्र था, क्योंकि आपको पता है नाट्य शास्त्र आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसको 5th शास्त्र कहा गया, राइट, अपार्ट फ्रॉम द 4th. ये एक ऐसा शास्त्र that is accessible to all, right? Similarly जो ये शास्त्र है ये किस चीज के बारे में बता रहा है, उसका एनालिसिस किस चीज के बारे में बता रहा है कि इसमें ग्रामर क्या क्या है, ग्रामर कैसी है, कैसी ग्रामर यूज हुई है, मतलब लैंग्वेज के बारे में बात करेगा. इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द रिचुअल इंटरप्रिटेशन, कि कैसे जो आपकी ट्रेडिशनल रिलीजियस सोशल लाइफ थी ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है लिटरेरी प्रोडक्शन को, क्या लॉजिक इज बीइंग अप्लाइड बाय द author. तो इन सब का analysis. Now literature in the sense of just for the sense of कि एक literature अपने आप में ही एक अंत है, कि आप समझिए literature एक ऐसा important segment of expression है जो अपने आप में ही एक world है, right? अपने आप में एक पूरा संसार है. So this very idea of it being complete in itself, was a great innovation of the classical period from about the 1st century AD. This is not to say that there were not hints of the form before that time. Literary composition as other than a vehicle for religious or metaphysical purpose appeared towards the end of 1st millennium BC in portions of the Ramayana and in the poems and dramas of Buddhist writers such as Asvaghosa.
हाँ, तो आप डिस्पाइट सम नोटेबल स्टाइलिश इवोल्यूशन द क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ऑल्दो प्राकृत वाज, जैसे आपने शाकुंतला में देखा कुछ उसमें जो वर्सेस हैं वो प्राकृत में हैं। आपने मृच्छकटिका का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये पढ़ा होगा कि वो प्राकृत में लिखी गई है। तो इवन दो संस्कृत और प्राकृत का डिफरेंस ये था कि वो जो डायलेक्ट था वो डायलेक्ट everyone was able to understand it, और जो संस्कृत है as a language was only was only accessible to a certain amount of people, certain castes, and not accessible to others. तो लेकिन फिर भी हम अगर उसके फॉर्म में जाएं, उसके इन बारीकियों में जाएं, तो हम देखेंगे कि while there are differences in how it is spoken and this and that, but they also become the literary languages, and metrics aside utilize the same conventions. जो भी convention आपके सांस्कृतिक लिटरेचर लैंग्वेज में यूज हो रहे थे वही प्राकृत में भी यूज हो रहे हैं। तो परफॉर्मेंस का पार्ट, डांस का पार्ट, ये सब मृच्छकटिका में भी काफी सिमिलर है। परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, क्या मूड रासा है वो ऑफ कोर्स उसमें डिस्टिंक्शन लेके आएगा जैसे शाकुंतला में। सो द क्लासिकल लिटरेचर प्रीसपोजेस और implies a consciously elaborated poetics, consistent and utterly sophisticated use of standard literary devices even in the early work of Asvaghosha makes this seem certain. Alliteration क्या होता है? एक जो आपका syllable है वो उसका repetition, जैसे एल्मा जैसे कुछ आप समझिए ए का अगर रिपीटिशन है या कोई भी सिलेबल का रिपीटिशन, ओके। सो एलिट्रेशन एंड सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन were clearly worked out into the theory, as was the ever present pun that is known as श्लेषा। तो alliteration, simile, श्लेषा, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में देखते हैं। सो द पोएटिक्स, सबसे पहले आपका जो स्कूल है वो है अलंकारा शास्त्रा का। इसके बाद हम कौन सा वाला पढ़ेंगे? ड्रामेटिक शास्त्रा का। द थर्ड इज ऑफ ध्वनि स्कूल, जो अलंकारा शास्त्रा से ही ले रही है। सो इट वॉज द फर्स्ट and foremost the rich and balanced elegance of the Sanskrit medium of Kavya that inspired the passion with which the critics of the Alamkara tradition described it. तो पहला जो एनालिसिस आया हमारे पास वो आता है अलंकारा शास्त्र से। अलंकारा मीन्स ऑर्नामेंट। अलंकारा का क्या मतलब होता है? ऑर्नामेंट, एंड इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज फिगर ऑफ स्पीच। तो अलंकारा शास्त्र में अलंकारा क्रिटिक्स मोस्टली जो आपका लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं वो उसकी लैंग्वेज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके फॉर्म को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। द डिफरेंस कि वो जो फॉर्म है, जो सिमिली का यूज हुआ है, जैसे जब शाकुंतला को वो एक जैस्मिन उसकी ब्यूटी को जैसे डिस्क्राइब करता है, मैंगो ट्री कैसा मूड को डिस्क्राइब कर रही है, राइट, उसकी ब्यूटी को वो एक फ्लावर की तरह डिस्क्राइब करता है। एंड तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी, और जो फिगर ऑफ स्पीच को यूज करके वो डिस्क्राइब करता है, राइट, जैसे हनी बी, इन सब का यूज। तो इन सब की स्टडी आपकी जो करते हैं वो है अलंकारा ट्रेडिशन में जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को स्टडी किया है। इमेजेस आर द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन। तो इमेजेस क्या है? Language of the imagination. So all languages may be in part imaginistic, but when the image becomes it in its complex or sustained use, the chief object of the expression, it is poetry properly speaking. So basically, what logic behind poetry properly speaking when it comes to language, how language has been used? This is what Alamkara Shastra tradition did. नाउ इन्होंने क्या क्या स्टडी किया? इन्होंने सबसे पहली चीज आपकी स्टडी करी है वो है सिमिली। सिमिली क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली से हम सब फैमिलियर हैं। सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल, आउटस्प्रेड एट द जैकेट फुट ऑफ विंध्या माउंट दाउ शैल सी रेवा रिवर इन चैनल्स लाइक एश लेड इन फॉरवी स्ट्रीक्स ऑन अ एलिफेंट्स फ्रेम। तो रिवर को कैसे, रेवा रिवर को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है? लाइक एश लेड ऑन फरोई स्ट्रीक्स, राइट। सो द सो कॉल्ड नेचुरल और डिस्क्रिप्टिव पोएट्री ऑफ कालिदासा इज ऑफन एनलाइवन्ड बाय एन एप्ट बट ब्रेथ टेकिंगली इमोडरेट सिमिली। तो कहते हैं, एडविन जीरो कहते हैं, जो कालिदासा हैं वो काफी सिमिली का यूज करते हैं अपने काम में। अब जो सिमिली है उसके कई प्रकार हैं, टाइप हैं। पहला आता है रूपका।
रूपका क्या है? A common variant of simile is thus रूपका, where image is identified with the subject. It is often worked out in meticulous parallel detail. तो image जो है वो किस, रूपका का क्या मतलब है? रूपक, रूप, तो आइडेंटिफिकेशन, ये सिमिली का पर्पस है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. सो it is often worked out in meticulous parallel detail, as in this image of Kalidasa, where the river woman is approached by the cloud, drawing away from her hips the banks, her blue water garment, which seems half-heartedly held by her hand as reed branches touch it, bending over her, my friend, it will be hard for thee to depart. Who that has known loves his savor can leave one who haunches, whose haunches are bad. Another, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि identification, the image is तो haunches are bad. The very idea of somebody being haunched, on their haunches, and drawing away from her hips the banks, her blue water garment. So the very identification of the water garment and reed branches touching it, the bends, the bank. Another extension of the simile is utpreksa. It is also metaphorical identification, but not one thing with another. Rather, it is the ascription of the. So it is about the behavior. तो जैसे रूपका में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इमेज है, यहाँ पे बिहेवियर से आइडेंटिफिकेशन है. इस टाइप की सिमिली में क्या होता है? बिहेवियर को हाईलाइट किया जाता है. फॉर एग्जांपल, द हार्ट टायर्ड ऑफ जर्नीज, तो इट इज द बिहेवियर, after dispelling thy weariness on the city's palace roofs, fragrant with flowers and marked by the foot dye of voluptuous woman. So the behavior, right? So there are in Alamkara Shastra, tedious. तो अलंकारा का मतलब ही क्या है? ज्वेलरी, ऑर्नामेंट. तो लैंग्वेज का जो ऑर्नामेंट है, फिगर ऑफ स्पीच, right? Simile, रूपका, these images that are being used, these association that are being drawn out. ये इससे क्या कौन स्टडी कर रहा है? अलंकारा ट्रेडिशन में स्टडी किया जा रहा है. नाउ another thing in Alamkara Shastra is that the critics of Alamkara school try to understand and portray that medium by identifying and isolating the aspects of imagery that are poetry, and that when used coherently, तो वो क्या स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि सारी इमेजेस आके टुगेदर, साथ में आके यूनिफाई होके कैसे सस्टेन करती हैं एक पोएम की भाव को, रस को कैसे सस्टेन कर रही हैं, क्योंकि ऐसे की तरह तो नहीं है, राइट? So there is लैंग्वेज की क्वालिटी एसोसिएटेड होती है लिटरेचर के साथ, जो आपको भावा, आपको रासा, ये सारे फील करने में, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती हैं. तो इस चीज को अलंकारा शास्त्र, अलंकारा ट्रेडिशन में स्टडी किया जा रहा है थ्रू लैंग्वेज, कि कैसे लैंग्वेज में थ्रू सिमिली, थ्रू हाइपरबोले, ये कैसे स्टडी किया जा रहा है. तो अब हमने दो टाइप की सिमिली देख ली. क्या है? पहली है आपकी रूपका, जहाँ पे आपका नोशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन. दूसरी है आपकी उत्प्रेक्षा, उसमें क्या है? द ascription of behavior. Now, such extensions suggest simile, but have their own force. Instead of merely comparing the beloved's face with the moon, the poet can claim that a face excels the moon, or can observe that the moon, because of its blemishes, is less perfect than her face. Or he can presume that two such perfect objects must be rivals and jealous of each other. Her face wears the sad look of the moon when thy approach eclipses its beauty. So after simile, the next important variety of figure of speech that the Alamkara tradition studies is hyperbole, atisaya. तो exaggeration जो है उसको स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मेघदूता, द क्लाउड मैसेंजर बाय कालिदासा does not present many examples of hyperbole. For Kalidasa seems in this poem to seek the restrained composure that comes from describing the natural munificence of the Indian landscape.
So in some examples, however, there are elements of hyperbole that dominate the simile form. For example, passion for the dear one waxes and becomes a mountain of love. तो एक exaggeration है of the feeling, right? That it is becoming a mountain of love. तो next is about a group together with hyperbole or perhaps taken as extensions of hyperbole by Alamkara critics are the many distortions of specific relations. तो अभी यहाँ पे hyperbole के बारे में बात करेंगे. He is talking about figure of speeches. तो hyperbole आपको समझ आ गया होगा कि कैसे it is the simply about exaggeration, figure of speech that is associated with exaggeration और ये dominant हो जाता है simile पे, be it उत्प्रेक्षा, be it रूपका, and then comes Alamkara's final डिस्कशन. इट इज श्लेषा. श्लेषा क्या है? पन है. पर पन जो है, जिस तरीके से पन को समझा जाता है उस तरीके से नहीं श्लेषा का यूज किया गया है. दो उसका मीनिंग इस चीज से ड्रॉ करता है कि एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग हैं. एक वर्ड है, उसके दो अलग अलग मीनिंग है, राइट? तो उसके वो दो मीनिंग्स जो हैं, डिफरेंट मीनिंग, जैसे एक का मीनिंग रिवर भी हो सकता है, एक का मीनिंग विमेन भी हो सकता है. तो इसके अगर दो मीनिंग है, रिवर विमेन दोनों, राइट, तो इन दो मीनिंग्स को कंबाइन करके कैसे पोएम में जान डाली जा रही है, ठीक है, ये श्लेषा है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द विटी कॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. So Slesa, say some Alamkara critics, is when the meaning that is coupling of these two different meanings complement each other. They are a combination of basic figures. Now the next thing that has been highlighted by them is the rhyme yamaka, and it is considered similar in that okay. तो एलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो वो अलमकारा ट्रेडिशन में जो स्कॉलर्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो इंडियन क्लासिकल वर्क है वहाँ पे एलिट्रेशन का भी काफी यूज हुआ है, क्योंकि अलमकारा ट्रेडिशन के जो लोग हैं वो क्या स्टडी कर रहे हैं? लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, राइट? ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं. Alliteration is the reoccurrence to an abnormal degree of the same. अगर आप सोचिए, अगर दुष्यंता और शाकुंतला का रोमांस अगर आपको बहुत बोरिंग ढंग से बताया जाता, मे बी यू वुडंट हैव टेकन इंटरेस्ट इन इट, बट उनका जो रोमांस है वो इतना ज्यादा ब्यूटिफाई कर दिया जाता है विद द यूज ऑफ कि शाकुंतला की ब्यूटी को डिस्क्राइब करके, उस समय कैसा मौसम हो रहा था, कैसी ग्रीनरी थी, हॉमिटेज कैसा था, दुष्यंता के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करके, उन जब वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो वो जो बात की मिठास है वो किस तरीके से दिखाई जा रही है विद द यूज ऑफ, ये सारी चीजें तो दिस लैंग्वेज का जो ये एक यूज है, इसको स्टडी कर रहे हैं अलम. तो एलिट्रेशन का भी काफी यूज होता है. एलिट्रेशन क्या है? सिंपली व्हेन देयर इज रिपीटिशन ऑफ फोनीम्स. फॉर एग्जांपल पौत्रा कौशापी कुछ से याकहा सासाग्राम. तो आप यहाँ पे देखेंगे ए एम ए एच, यहाँ पे ए एच, राइट, यहाँ पे भुजो भुजा, राइट. तो ये इस चीज का रिपीटिशन, AM, right, again, AH repetition. तो ये क्या है? एलिट्रेशन है, राइट. ये क्या प्रोवाइड करता है? एक रिदमिकल क्वालिटी प्रोवाइड करता है. जैसे आप रैप सुनते होंगे तो आप देखेंगे कि रैप में कैसे वर्ड्स की एक राइमिंग क्वालिटी की वजह से आपको कई रैप सुनने में मजे आते हैं, राइट. वैसे यहाँ पे so rhyme yamaka is considered similar in that it is also in repetition of syllables, usually 3 or more, somewhere within the verse. This can become complex in the 9th canto of the Raghuvamsa. Raghuvamsa, I hope you remember, Kalidasa का आखिरी काम है, unfinished epic है उनकी. Verse itself was the concern of the specialized subdiscipline. तो कैडेंस का मतलब है, जो कैडेंस पैटर्न्स है, मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच, मॉड्यूलेशन ऑफ टोन, ठीक है. तो मॉड्यूलेशन ऑफ टोन जो लैंग्वेज के थ्रू दिखाई जा रही है ना, बहुत यूनिक है.
तो द कैडेंस पैटर्न्स ऑब्टेनेबल इन दिस वे वर मोस्टली इनफाइनाइटली वैरिड. अलग अलग टाइप के होते थे ये मॉड्यूलेशन, अलग अलग ढंग से ये मॉड्यूलेशन को आप अचीव कर सकते हैं. बट सर्टेन वर्स फॉर्म्स कंटेन टू बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली वैरिड, बट सर्टेन वर्स फॉर्म्स कंटिन्यू टू बी एसोसिएटेड विद सर्टेन स्टाइल्स ऑफ पोएट्री, जैसे कि सार्दूलविकृदिता. तो ये जो सार्दूलविकृदिता है, ये एक सांस्कृतिक मीटर है. तो आप अभी मीटर, आप लोग ने मीटर, यू माइट हैव स्टडीड मीटर होते हैं, राइट? तो मीटर है, सांस्कृतिक मीटर है ऑफ द छंदास. और ये जो मीटर है, आप मीटर इनके बारे में, बिकॉज मीटर, फुट, all of this is a very important part of poetry to understand poetry, form of poetry. तो ये जो है सार्दूलविकृदिता, ये मोस्टली लव पोएम के साथ एसोसिएट किया गया है ये मीटर को. इस मीटर में क्या है? प्रेज ऑफ किंग. ठीक है, सिंपल आप ये समझिए, प्रेज ऑफ किंग. द अलंकारा critics also discussed topics less obviously related to the capacities of language. Important to them were the concepts of guna and dosha. तो गुना दोषा क्या होता है? डिफेक्ट और क्वालिटी, राइट? गुना और दोषा, क्वालिटी एंड डिफेक्ट. तो द क्वालिटी ऑफ स्टाइल, तो लैंग्वेज की क्वालिटी, लैंग्वेज की डिफेक्ट, ये सब भी अलंकारा क्रिटिक्स स्टडी करते हैं. उसके बाद वो फिगर, संस्कृति और समकारा, एसोसिएशन ऑफ फिगर. तो मतलब जो फिगर है, आपकी जो इमेजरी बनाई जा रही है, उसका एसोसिएशन किसके साथ है, राइट? क्या लैंग्वेज यूज कर रही है, की जा रही है टू ड्रॉ दैट इमेजरी. क्योंकि आप जब कुछ पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा, तो आपके सामने यू वुड सी दैट पिक्चर बीइंग ड्रॉन टू, आप इजीली रेफर कर पाएंगे कि अच्छा इससे रेफर कर रहे हैं, तो ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको ड्रॉ किया जा रहा है. तो तो उसे एक सस्टेन्ड इमेजरी, कॉन्क्रीट इमेजरी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, राइट? थ्रू लैंग्वेज. तो ये भी वो स्टडी करते हैं. दो देयर हैज बीन दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस दैट the figurative school, the Alamkara tradition has been criticized कि जो figurative school went very far in the explanation of that apparent paradox. They were by the large content to identify verse as involving an element of the same that necessarily qualified the more obvious forms like simile. Later schools will explain the matter in ways that are more cognate, observing that the beauty of such verse lies not so much in form of assertion. तो अलंकारा स्कूल अभी तक आपका क्या पढ़ रहा था? आपका फॉर्म पढ़ रहा था कि पोइट्री का कैसा फॉर्म होता है, राइट? अगर हम बोल रहे हैं कि वो इतनी सुंदर है, या वो इतना ब्रेव है, इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, और उसका कंपैरिजन चांद, सन, इन सब चीजों से कर रहे हैं, या किसी भी चीज से कर रहे हैं, तो वो कंपैरिजन क्या है? इज इट सिमिली, इज इट मेटाफर, इज इट हाइपरबोल, एग्जैजरेशन? ये सब चीजों को, इस फिगर, इस ऑर्नामेंटल पार्ट ऑफ लैंग्वेज को वो स्टडी कर रहे हैं. तो इसी फॉर्म को स्टडी करने पर उनका ज्यादा ध्यान केंद्रित रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज वन ऑफ देयर लिमिटेशंस एज हैज बीन पॉइंटेड आउट इन बाय एडविन जीरो इन दिस वर्क. ओके, तो आपको एक चीज जो इसके साथ अलंकारा स्कूल क्या स्टडी कर रहा है, इससे ये भी समझ आ रही होगी कि जो आपकी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, जैसे हमने कालिदास का कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, तो वो सिमिली का बहुत यूज करते हैं अपने काम में, मेटाफर्स का बहुत यूज करेंगे अपने काम में, श्लेषा का बहुत यूज करेंगे. अगर आपने संस्कृत में ही वो टेक्स्ट पढ़ा होता है जो हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है, तो हमें समझ आता कि श्लेषा का यूज कैसे हो रहा है, एलिट्रेशन का यूज कैसे हो रहा है, राइट? नाउ अब आता है आपका ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म, जो मूड और रासा के बारे में बताता है. तो मैं आपका ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म में आई हैव हाइलाइटेड, आई हैव अंडरलाइंड अ फ्यू थिंग्स, यू मे गो थ्रू देम, आई विल बी शेयरिंग द टेक्स्ट विद यू. क्योंकि आपने नाट्य शास्त्र ऑलरेडी सर के साथ कंप्लीट कर लिया है, तो मैं इसके लिए आई वोंट बी गोइंग इनटू मच डिटेल एक्सेप्ट फॉर द पार्ट वेयर आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड इट थ्रू शाकुंतला और दुष्यंता की स्टोरी जो आपने पढ़ी है, राइट? तो कैसे the first act of Shakuntala, for example, is largely devoted to the delineation or description of those conditions which will determine the course of affair. तो कैसे आपका जो रस है ना, रस
जो लिटरेचर में आ रहा है, आपका जो मूड जनरेट हो रहा है, अच्छा लव का मूड है या आपका मूड है हैप्पीनेस का या आपका मूड है एंगर का, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू द परफॉर्मेंस, वो जो जनरेशन है वो डिपेंडेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स में, यू नो अलोंग विद कि कैसे क्या कंडीशंस को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पहले ही हमारी जो एक्ट है, एक्ट 1 है आपका शाकुंतला दुष्यंता का, उसमें आपको पहली इमेजरी क्या मिलती है कि दुष्यंता जो है वो क्या है, एक प्रेडेटर है, वो क्या कर रहा है, एक शिकारी है, शिकार कर रहा है। इसी शिकारी शिकार की जो इमेजरी है ये आपका लव अफेयर जो है शाकुंतला और दुष्यंता का एक्ट 1, 2, 3 में डिटरमाइन करती है, राइट। इट इज बोथ ऑफ देम आर कमिंग टुगेदर और उसके बाद वो किसी को बता नहीं रहे और वो एकदम से भाग छुप छुप के मिल रहे हैं, छुप छुप के फिर भाग भी जा रहे हैं, राइट। और this is then also subsumed. It is not that simple, but right, we know that it is not that simple, because even in that is beyond that is the point where we are made to address the questions such as what is duty, what is duty। अगर हम अपनी ड्यूटी एज अ किंग या ड्यूटी एज अ होस्ट जब शाकुंतला नहीं करती हैं तो यू नो दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं, कर्ज दे देते हैं, राइट। फिर उस कर्ज की वजह से क्या अनफोल्ड होता है, राइट। एंड फाइनली जो उनकी एक्सटर्नल जर्नी थी, वो एक दूसरे से बहुत इनामर्ड है, एक्सटर्नल एक दूसरे के रूप से, एक दूसरे की बातों से बहुत इनामर्ड है, बट दे डू नॉट नो ईच अदर। इंटरनल साइड जो है एक दूसरे का वो नहीं जानते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस एक्ट वो जानने लग जाते हैं, राइट। तो ये जो डिलिनेशन है, डिपिक्शन है, ये आपका डिपेंडेंट है कि आपको वो इमोशन एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेस आप वो फील कर पा रहे हैं उसे एक्सपीरियंस करके, वो एक्सप्रेशन को आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, राइट। तो जो आपका ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म है वो इन सब चीजों को डिस्कस करता है। आपका जो नाट्य शास्त्र है, पहली ही चीज में वो आपको बता देता है साफ साफ कि ड्रामा का पर्पस क्या है। पहला आपको प्लेजर देना, एंटरटेन करना, दूसरा आपको ऑल्सो ज्ञान देना, है ना। सो आपके जो ऐसे कालिदासा का प्ले है, मृच्छकटिका का प्ले है, तो ये लव, ड्यूटी, धर्मा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मोरालिटी, वर्चुओसिटी, इन सब चीजों के बारे में भी बात करते हैं। नाउ बिकॉज अनुभवा, स्थायी भावा, ट्रांजिटरी इमोशंस, आपके डोमिनेंट इमोशंस जैसे श्रृंगार, आपका ग्रीफ है या आपका हीरोइक है, ये सारे आप ऑलरेडी नाट्य शास्त्र में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। सो आई वोंट बी नाउ, दिस इज व्हाट यू माइट फाइंड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोग को यू माइट रियली एंजॉय, मेनी ऑफ यू मे एंजॉय, रियली माइट बी एंजॉयिंग लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आप जब म्यूजिक को सुनते हैं तो आप सब वो ध्वनि से मंत्रमुग्ध होके, उसकी जो टोन है, उसमें जो वर्ड्स हैं, उन सबसे मंत्रमुग्ध होके एक पर्टिकुलर सॉन्ग लाइक करते हैं, दूसरे पर्टिकुलर सॉन्ग को रिजेक्ट करते हैं। तो जो आपका ध्वनि स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म है वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में इसी टोन को, इसी ध्वनि को स्टडी करता है। दिस इज नोन एज द स्कूल। This school was known as the Dhwani school, a school that studied the tone, and this is not just as will be pointed out by Advenchero. So it was not just लिमिटेड टू द भक्ति स्कूल, कि जैसे गीता गोविंदा है या बंगाली जयदेवा है, रिटन इन संस्कृत ऑफ होली न्यू आर्टिस्टिक डिमेंशन। तो इन सब से ही ध्वनि स्कूल नहीं आया। इंस्टेड वी सी दैट ये अलंकारा जो स्कूल है ना आपका, जहाँ पे वो फॉर्म को स्टडी कर रहे हैं, ये उनसे भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है आपका ध्वनि स्कूल। Now the Dhwani theory, a theory of suggestion or tone, is in fact a modification of the Rasa theory. तो जो आपने रासा थ्योरी पढ़ी है और जो अलंकारा ट्रेडिशन में अभी तक पढ़ा है, इन सब का मॉडिफिकेशन ही आपका ध्वनि स्कूल है। क्या है? ध्वनि स्कूल है। The Dhwani theory was expounded by Anandavardhana in the Dhwanyaloka, has its theoretical focus in and derives its context of discussion from an ancient model proposed by the grammarians and
philosophers of language. The theory was that a word has three parts. तो theory क्या है basically आपकी कि जो आपकी language है उसके पास तीन parts हैं. पहली पार है कि वो denote करती है, वो क्या मतलब बताना चाहती है, ठीक है. दूसरी चीज क्या इंडिकेट करना चाहती है उस मतलब से, इसे क्या बोलते हैं लक्षणा. डिनोशन को क्या बोलते हैं अभिधा, और इंटेंशन को क्या बोलते हैं तात्पर्य. तो लास्ट में क्या आता है, पहला पार होता है वर्ड का कि अच्छा इसने ये डिस्क्राइब किया, ये चीज डिस्क्राइब की जा रही है, इस डिस्क्रिप्शन से क्या इंडिकेट किया जा रहा है, और तीसरी चीज इस चीज का क्या इंटेंशन क्या है इस डिस्क्रिप्शन का, इस इंडिकेशन का. इस चीज को आपकी ध्वनि थ्योरी डिस्कस करती है. They are also influenced by, the Alamkara school of thought, Alamkara viewpoints. You may go through it, and it is quite interesting and simple. You would enjoy reading it on your own more than me explaining it to you line by line, because what was the gist of it, जो इसका सारांश था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि थ्योरी में क्या है, वो किस चीज को एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं. Now let us quickly come to quickly come to the SOL study material. तो आपका जो SOL study material है, it has been prepared by Professor Devdulal Haldar, and he says that in this particular work, Indian Poetics, who Edwin Chiro जो है आपके वो Ohio born American scholar हैं, and he pursued his interest in Indian literature and came to India and studied the scholars of classical Indian literature. तो इनका जो काम है Indian Poetics, it is a critical analysis of Indian poetics from a modern perspective. And it shows Indian poetics cannot be understood without understanding the Indian ethos, which has been forming since the classical times. So Jiro starts the essay with the Sanskrit word sahitya, which means to be joined together. And then he goes on to talk about the Alamkara school, the Dhwani school, the Rasas, the dramatic criticism. These three segments is what Edwin Giro explores and comments upon. He also highlights the origin of Indian poetics in this work, and with it also is giving us example from Shudraka, from Kalidasa, and various other works. Jiro speaks about the two traditions, the Kavya and the Nata tradition, the Alamkara Shastra in classical India, which looked at the stylistic aspects of तो स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टाइलिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है, लैंग्वेज डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं, जैसे अगर वो रिटोरिक परसुएसिव डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, या फिर वो अरेंजमेंट कैसे है वर्ड्स का, फ्रेजेस का, ये तो लैंग्वेज को बेसिकली अलंकारा शास्त्र में स्टडी किया जा रहा है. ध्वरा में ध्वन्य लोका में ध्वनि थ्योरी दी जा रही है, पावर ऑफ वर्ड के बारे में, टोन के बारे में, सजेशन के बारे में स्टडी किया जा रहा है, और आपकी जो ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म है, इट इज स्टडिंग द रासा theory. Now, in the review that is given in the SOL study material, it says that Edwin Giro is a modern poetics, who in his essay significance of the Indian poetic tradition starting from the Alamkara to Rasa to Dhwani tradition illustrate the ways in which Indian poetics developed. जो आपने तीन स्कूल पढ़े, be it अलंकारा शास्त्रा, be it रासा स्कूल, be it ध्वनि ट्रेडिशंस, तो ये हमें किस चीज की इंसाइट दे रहे हैं कि कैसे इंडियन पोएटिक्स ओवरऑल डेवलप हुई है. If you have questions regarding the two backgrounds that we discussed today, please write it in the chat box. In the exam, you may be asked what are the main components of Natya Shastra, what is Rasa, what is what is the main idea given by Edwin Giro, or what is there in what is Akam, what is Puram, what is the idea of love and duty in Shakuntala, what are the epical elements in Silapati Karam. तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं.
आपका बैकग्राउंड यूनिट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक एक्सटेंशन है आपका। आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, एक्सटेंशन है आपका। किस चीज का एक्सटेंशन है? आपने जो अभी तक पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा? शाकुंतला पढ़ा आपने, दुष्यंत, आपने शूद्र का पढ़ा, आपने महाभारता पढ़ा, आपने सिलपतिकरम पढ़ा, आपने इंडियन क्लासिकल पढ़ा। तो इंडियन क्लासिकल में एक चीज आपको जो देर आर हाउ इट इज प्रेजेंटेड, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट कुछ चीजें जो आपको लगी होंगी कि इट इज टॉकिंग अबाउट the idea of right and wrong, love and duty, dharma, life, impermanence of life. तो ये सारी चीजें, और इसी चीज को समझाने के लिए इन चीज पे जो औरों ने स्टडी करी, ये आपकी बैकग्राउंड रीडिंग में है. If there are questions you may have, you may please type it in the chat box. I hope you enjoyed the classes. I would thank the PCP section and the technical team for their guidance. Thank you all for being here. You may please type your questions in the chat box. For the strategy for exams, as you simply need to answer what has been asked. That should be your strategy. Answer accordingly. Whatever has been asked, just entirely focus upon that. For example, if you are being asked a question on Shudraka's Mrichakatika, in the first in the first paragraph of your answer itself, आप बता दीजिए कि आप in relation to that question आप किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं अपने आंसर में. Also give details about कि शूद्र का ने लिखा है मृच्छकटिका कैसा प्ले है, ये सब थोड़ा सा डिटेल्स आप दे दीजिए अपने फर्स्ट पैराग्राफ में. आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पैराग्राफ जो है वो इन सब के जो भी पॉइंट आपको डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, उसको डिटेल में बताना चाहिए. टिल नाउ एज यू हैव बीन आंसरिंग योर क्वेश्चंस, तो आपको वैसे ही आंसर करने हैं. Yes, you can get sample questions. आपके questions आपके study material में भी available हैं. आपके जितने भी questions हैं study material में भी available हैं, और आप questions you can also refer to questions that are available in the SOL website, question papers that are available in the SOL website, in the DU website. For today's topic, आप हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बैकग्राउंड यूनिट 5, आपकी 5 यूनिट में डिवाइडेड है ICL. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5. यूनिट 2, 4 मैंने ली. यूनिट 1, 2 रविकांत सर ने आपको पढ़ाई, मृच्छकटिका और महाभारता. Shakuntala Dushyanta, that is Kalidasa, and Silapatikaram, I did it with you guys. And also for background, आपने अभी नाट्य शास्त्र सर के साथ कंप्लीट किया और आपने द्रौपदी इरावती कर्वे का कंप्लीट किया. इसके साथ हमने जो टॉपिक आज के लिए देखा है वो भी बैकग्राउंड यूनिट 5 से है, लव स्टैंड्स अलोन, और दूसरा है इंडियन पोएटिक्स. I'll also share the syllabus with you, though it has been shared by the group admins with you. Good morning. You may come across, you may refer to a lot of questions that are available, previous year question papers, questions that are there given in your SOL study material, and you may write the answers. You may utilize Microsoft Teams. You may send the the answers to your respective teachers, ask them to give you help you out with it if you want any help. At least expect 3 to 4 questions from your background units, max or minimum. Entirely depends on who is who is setting the paper and who is deciding. How would I know about that? Okay, Zakia, please text me on Microsoft Teams. You may also contact Nazia, or
there's another student from your class, Samish. I guess you can also contact that student. They will add you to the WhatsApp group. You may also text me on Microsoft Teams. I can send you the link. If you guys are going to text me on Microsoft Teams, I will be sending you the link. You can also text your classmates and they will be sending you the link. Your classmates already have a group formed. So I'll see you, hopefully see you again. And it was nice to have you all. Thank you.